Jaya Radha Vanshi Hare Radha Vanshi
जय दामोदर भगवान की। To the Supreme Lord, whose form is embodiment of eternal existence, knowledge and bliss, whose sharp-shaped earrings are swinging to and fro, who is beautifully shining in the divine realm of Gokula, who I, due to the offense of breaking the pot of yogurt that his mother was churning into butter, and then stealing the butter that was kept hanging from her swing, is quickly running from the wooden grinding mortar in fear of Mother Yashoda, but who has been caught from behind by her, who run after him with greater speed. To that Supreme Lord, Sri Damodara, I offer my humble obeisance. Seeing the whipping stick in his mother's hand, he is crying and rubbing his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes are filled with fear, and the necklace of pearls around his neck, which is marked with 3 lines like a conch shell, is shaking because of his quick breathing due to crying.
To the Supreme Lord Sri Damodara, whose belly is bound not with the ropes but with his mother's pure love, I offer my humble obeisance. By such childhood pastimes at this, he is drowning the inhabitant of Gokula in pools of ecstasy and is revealing to those devotees who are absorbed in knowledge of his supreme majesty and opulence that he is only conquered by devotees whose pure love is imbued with intimacy and is free from all conceptions of awe and reverence. With great love, I again offer my obeisance to Lord Damodara hundreds and hundreds of times. O Lord, although you are able to give all kinds of benediction, I do not pray to you for the boon of impersonal liberation, nor the highest liberation of eternal life in Vaikuntha, nor any other boon which may be obtained by executing the nine processes of birth. O Lord, I simply wish that this form of yours as Balagopala in Vrindavana may ever be manifest in my heart, for what is the use to me of any other boon beside this? O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair tinged with red, is kissed again and again by Mother Yashoda, and your lips are reddish like the bimba fruit. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Thousands and thousands of other benedictions are of no use to me. O Supreme Godhead, I offer my obeisance unto you, O Damodara, O Ananta, O Vishnu, O Master, O my Lord, be pleased upon me by showering your glance of mercy upon me. Deliver this poor ignorant fool who is immersed in an ocean of worldly sorrows and become visible to my eyes. O Lord Damodara, just as the two sons of Kuvera, Manigriva and Nakulvara, were delivered from the curse of Narada and made into great devotee by you in your form, as a baby tied with rope to a wooden grinding mortar. In the same way, please give me your own prema bhakti. I only long for this and have no desire for any kind of liberation. My obeisance to the brilliantly effulgent robe which binds your head. I then offer my obeisance to your belly. All obeisance to you. जय श्री श्री दामोदर भगवान की। हरे कृष्णा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं देशं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया अंगुरंगायते गिरि यत्कृतात्मां वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं
देव श्रीमद् भागवत गीता चैप्टर 17 अध्याय श्लोक नंबर 2 श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु श्री भगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। शिल प्रभुपाद के शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य। श्री भगवान उवाच भगवान ने कहा त्रिविधा 3 प्रकार की भवति होती है श्रद्धा देही नाम देहधारियों की सा वह स्वभावजा प्रकृति के गुणों के अनुसार सात्विकी सत्वगुण राजसी रजोगुण च ही एवं निश्चय ही तामसी तमगुण च तथा इति इस प्रकार काम उनको श्रीनु मुझसे सुनो। तो भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा 3 प्रकार की हो सकती है सत्वगुणी रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुखतावश इनका पालन नहीं करते वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सत्वगुणी रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्म के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करती है। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करते हैं। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु के संगति करता है और उसकी तथा शास्त्र के विधि विधान का पालन करता है तो उसकी वह मनोवृत्ति बदल सकती है। यह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुणों से सत्वगुणों से या रजोगुणों से सत्वगुण में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन यह तात्पर्य वह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। उसे प्रामाणिक गुरु के संगति से रहकर बुद्धिपूर्वक बातों को विचार करना होता है तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त हो सकती है। तो इसके पहले हम लोग 3 गुण के बारे चर्चा की। तो इस श्लोक में भी थोड़ा उसके टाच दिए ये तीनों गुण के अनुसार
तीनों गुण के अनुसार के हमारे श्रद्धा अर्थात भक्ति अर्थात हमारा स्वभाव होते हैं। तो हर चीज 3 गुण के अंडर में है, 3 गुण के कंट्रोल में है। तो गुणों के अनुसार से मनुष्य जो स्वभाव होते हैं और स्वभाव के अनुसार से मनुष्य के भी इसके पहले अध्याय हम लोग श्रवण किया, 2 भाग किया, एक दैवी और एक असुर। तो दैवी असुर ये 2 प्रकार का मानुष को भाग किया है। जिसको गुण दैवी संपन्न होता अच्छा गुण वाले हैं उनको दैवी संप्रदाय कहते हैं। आज जो शास्त्र के समाज के धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं उसके आसुरी गुण संपन्न करते हैं। तो ये तीनों गुण के अंडर में हम ये बाकी जितना क्रियाकलाप है वो आधारित है। वो सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। उसी गुण के अनुसार से हमारे दैवी और असुर भाग भी कहा जाते हैं। और यहाँ पर श्रद्धा के भी 3 भाग किया उसी गुण के अनुसार से, और हर कार्य के भी इसी अनुसार से, इसके आगे हम श्रवण करें, उसी अनुसार से 3 भाग किया। जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इसी प्रकार सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा, तामसिक श्रद्धा। तो जैसे कोई दान करते उसके भी 3 भाग किया, सत्व गुणे दान, रजसिक गुणे दान और तामसिक गुणे दान। उसी प्रकार सत्व गुणे यज्ञ, राजसिक गुणे यज्ञ, तामसिक गुणे यज्ञ। भक्ति के भी उसी प्रकार कहा जाता है। तो हर कार्य के उसी प्रकार 3 गुण के अनुसार से 3 श्रद्धा से भाग किया है। तो यहाँ पर बोलते हैं जो जितना ही हम कर्म करते हैं ये सारी कर्म 3 गुण के अधीन में है और ये सारे कर्म हमारे बंधन के कारण होते हैं। स्पष्ट करके शास्त्रों में हमें बताए हैं। तो सभी हम बंधन कारण हैं। सत्व रजस्तमा इति गुना प्रकृति संभव। ये सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण ये प्रकृति का उद्भव है अर्थात प्रकृति के कारण है। तो सत्व रजस तमन इति विद्धि त्रिन समत समुद्भव, ये प्रकृति का गुण के कारण से होती है। और बोले ये तीनों गुण जो है ये तीनों गुण हमारे बंधन के कारण होते हैं। सत्व रमस्त इति गुणा प्रकृति संभव निबोध्रांति महाबाहु देहे देहिन अव्यय। यद्यपि हमारा देह का अंदर देही है इसको अव्यय कहा जाता है, अर्थात जड़ नाश के विनाश होते, ना क्षय होते, ना जन्म होते, ना मरण होते। फिर भी उसको यहाँ पर बड़े 3 गुण के कारण उसको भी हमारे भिन्न भिन्न जोनि में आना जाना पड़ता। कारण जो हमारा जो माइंड है, मेंटालिटी है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, जिसके हम श्रद्धा करें, तो श्रद्धा के साथ उसको जड़ित होते। हमारा भाव के साथ वो अव्यय आत्मा जड़ित है। तो इसी कारण से उस आत्मा अव्यय होते हुए भी, अविनाश होते हुए भी, जिसको जन्म नहीं मरण नहीं ईर्ष्या होते हुए भी, उनको हमारे स्वभाव के अनुसार से इस धरातल में हर एक जोनि में देह प्राप्त करना पड़ता है। वही एक ही आत्मा कुछ टाइम हम मनुष्य जन्म प्राप्त होते और किस समय हम कुत्ता मिलित शरीर प्राप्त होते। वही एक ही आत्मा जब हम दूसरा शरीर प्राप्त होते तो उस शरीर के अनुसार से हमारा उसी कर्म करना पड़ता। और वही आत्मा जब मनुष्य शरीर प्राप्त होते तो मनुष्य शरीर के कार्य संपादन करते, एक ही आत्मा। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ये इस प्रकार के 3 गुण है, ये 3 गुण हमारा निबद्धंति, हमारे बंधन के कारण है। और इस 3 गुण के अंदर हमारा श्रद्धा,
और भक्ति और स्वभाव भी जड़ित होते हैं। तो इसलिए इस श्लोक में कहते हैं स्वभाव जो निवर्तन्ते। तो निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम सत्वरजस्तम इति गुना प्रवृत्ति संभव। प्रकृति संभव, ये सारे गुण इस प्रकृति से हमारा सृष्टि होते हैं, प्रकृति द्वारा सृष्टि होते हैं और प्रकृति के अनुसार से हमारी क्रिया करना पड़ता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा हमारा जिस तरह अप्लाई करे उसी अनुसार से हमारा श्रद्धा का भी अप और डाउन होते रहते हैं। जैसे गुण के अप डाउन होते हैं, कभी सत्वगुण तो कभी रजोगुण, कभी रजोगुण तो कभी तमोगुण। एक ही व्यक्ति, हर व्यक्ति के अंदर हमारे 3 गुण समपरिमाण में है, लेकिन 3 गुण होते हुए भी एक ही व्यक्ति हम लोग देखे, भागवत में देखे, जो ब्राह्मण थे वो अंतकाल में देखा गया वो ब्राह्मण तो नष्ट कर शूद्र बन गया। तो कर्म अनुसार से, स्वभाव अनुसार से, संग अनुसार से, आज जो शूद्र थे, वैद थे, शिकारी थे, वो ब्राह्मण बन के, वैष्णव बन के, पूरा ऋषि मुनि बन गया। क्यों ना? उसके पहले तो उसको तमोगुण रजोगुण था, लेकिन जब तमोगुण और रजोगुण के चापा पर के सत्वगुण के विस्तार हुआ तब तो उनको तमोगुण और रजोगुण फिनिश तो हुआ नहीं, वो डाउन हो गया। तो इसलिए यहाँ पर शास्त्र में कहते हैं रजस्तम अभिभूव सप्तम भवति भारत। कभी कभी हमारा रजोगुण और तमोगुण साइलेंट हो जाते और सत्वगुण वृद्धि पाते, तब तो उसको माना जाता सात्विक। वो ब्राह्मण बन जाते, वैष्णव बन जाते, भक्त बन जाते, व कोई अच्छा उच्च क्लास का मानुष बन जाते। आप कहीं बोलते रजस तमस इति, रजस तमोगुण के खत्म करके अर्थात उसको चापा करके हमारा सत्वगुण वृद्धि पाते, और कभी सत्व को रज को चापा करके तमोगुण वृद्धि पाते। तो कहते रज सप्तम तमस जब तमसप्तम रजस्तम, कभी रजसत्व के डाउन करके तमोगुण वृद्धि पाते, और कभी तमसत्व के डाउन करके रजोगुण वृद्धि पाते। तो इसके मतलब तीनों गुण हमारा अंदर में है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार से, संग के अनुसार से हमारा तीनों गुण आगे पीछे होते। लेकिन शास्त्र में यहाँ कहते निबध्नान्तु महाबाहो, ये तीनों गुण और तीनों श्रद्धा जो हमारे पास है ये बंधन का कारण है, ये बंधन के कारण है। इसलिए पूर्वाद यहाँ पर कहते हैं कि जो भी इस 3 गुण के अंडर में श्रद्धा हमारे पास होते हैं, लेकिन जब हम श्रद्धा के अपना हिसाब से यूज करते हैं तो हमके अपना अपना गति प्राप्त होते हैं। एक ही श्रद्धा सभी के पास श्रद्धा है, लेकिन जेहेतु हम श्रद्धा को सही ढंग से यूज नहीं कर रहा गुण के अनुसार से, तो हमारा गति भी अलग हो जाता है। जिसे श्रीमद् भागवत में कहते हैं जानती देवव्रता देवान, पितृ जानती पितृव्रता, भूतानि जानती भूतेज्य जानती, मद जाति न मामा। जो व्यक्ति अपना श्रद्धा के अनुसार से देव देवता की पूजा करते हैं वो लोग देवलोक में जाते हैं। जो लोग भूत प्रेत के पूजा करते हैं वो लोग भूत लोक में जाते हैं, प्रेत लोक में जाते हैं। आज जो पृथ्वी पुरुष को पूर्वजों को पूजा करते हैं उनके ही भगवान मानते हैं, तो उन लोग को पितृलोक जाते हैं। और भगवान कहते हैं जो मुझे पूजा करते हैं तो हमारे पास प्राप्त होते हैं। लेकिन श्रद्धा सभी के पास है, लेकिन हमारा श्रद्धा का गाइड नहीं है। हमको मालूम नहीं हम श्रद्धा कहाँ अप्लाई करें। तो हमको वही मालूम नहीं श्रद्धा कहाँ अप्लाई करें और कहाँ से श्रद्धा अप्लाई करके उसको क्या फल प्राप्त होते। एक बार जयपुर में हम लोग हाउस प्रोग्राम किया था, तो हाउस प्रोग्राम करके टाइम पहले से हम पूछे, सभी अपना अपना का मन का भाव, मन का वचन बताए भगवान कौन है। सभी के पर
आप सभी अपना अपना विचार से बोलो भगवान कौन है। तो कोई बोला भोले बाबा भगवान है, कोई बोला दुर्गा माता भगवान है, वो बोले भाई हमारे लिए तो पिता माता ही भगवान है। तो जिसको जिसको जिस तरह श्रद्धा, जिसको विचार था, अपना अपना भाव प्रकट किया। तो श्रद्धा सेम ही है, लेकिन विज्ञान के कारण, बिना आधार के कारण हम अपना श्रद्धा के अलग अलग जगह अप्लाई कर रहा, प्रयोग कर रहा। हमें मालूम नहीं श्रद्धा कहाँ, किसे अप्लाई करना और कहाँ पर अप्लाई करना। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य कहते हैं जो प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार मनोवृत्तियां अर्जित करता है और उसी प्रकार से अपना अपना श्रद्धा करके हम बंधन के कारण बन जाता है। तो जिसको श्रद्धा पिता माता में है, उनके भगवान मानते हैं, तो उनको गति पितृलोक में जाते हैं। और जिसको गति, जिसको श्रद्धा देव देवता का मानते हैं, जैसे शिव के हो, इंद्र के, किसी देवता का हो, तो मरने के बाद उनको गति उस लोक में जाते हैं। तो शास्त्रों में कहते हैं सभी हम बंधन कारण क्यों ना हमको पुनराय इस जगत में आना पड़ता है। तो हम इसे छूटना नहीं पाते, चाहे ब्रह्मलोक जाए बा कोई दूसरा लोग जाए। तो हमारा श्रद्धा हमको मालूम नहीं है जो भगवान कौन है, वो हमको अप्लाई नहीं किया। इसलिए हमारा श्रद्धा हम जहाँ मर्जी अप्लाई करते थे, चलो भाई ये भगवान हो, भगवान हो, भगवान, ये बाबा भगवान, कभी हमको तो लोकनाथ बाबा भगवान को, जो बालक ब्रह्मचारी भगवान को, तो वो भगवान, हर स्टेट में भगवान का अवतार बहुत है, लेकिन हमें मालूम नहीं। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं, लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु के संगति करता है और शास्त्रों को विधि विधान के अनुसार से चलते हैं, तो उसको मनोवृत्ति बदल जाता है। अर्थात हमारा जो भ्रम था जो वो भगवान है, वो हमारा चेंज हो गया। तो हमारा क्लियर हो गया तो भगवान अमुक बाबा नहीं है, तो अमुक देवता नहीं है, तो हमारा श्रद्धा चेंज हो गया। तो हमारा जो श्रद्धा तामसिक था, राजसिक था, तो हमारा श्रद्धा चेंज हो गया, हमारा शास्त्र के अनुसार से बिल्कुल शुद्ध सात्विक में आ गया। तो हमारा पता चल गया जो नहीं भगवान अकेला ईश्वर कृष्ण, यही एकमात्र भगवान है, और इनको छोड़कर जितना है सभी उनका ऑर्डर मानने वाले हैं। आज सब भृत्य मथुर ऑर्डर मानने, उनको निर्देश चलने वाला है। चाहे शिव बोलो, चाहे ब्रह्मा बोलो, चाहे इंद्र बोलो, सारी देवता। तो जब किसी को शास्त्रों के विधान पता चलते हैं गुरु के अधीन में, और जो गुरु कृष्ण का तत्वावधान में आते हैं, प्रॉपर सोच से आते हैं, तो हमारे प्रकाश प्रॉपर ज्ञान प्राप्त होते हैं। और नहीं तो हमारा इंद्रिय संपूर्ण नहीं है, इंद्रिय अपूर्ण है। हम अपने विचार से हम कोई रियल सिद्धांत नहीं आ सकते। इसलिए शास्त्र हमें 3 प्रकार का न 4 प्रकार का भ्रम कहेगा, इंद्रिय का त्रुटि है। इसलिए हम जो सोचते व सिद्धांत लेते वो सभी नहीं बन सकते। इसलिए हमारे ज्ञान को सटीक सोच से ग्रहण करना पड़ेगा, प्रॉपर उत्सव से, प्रॉपर सोच से हमें शिकायत करना पड़ता। और प्रॉपर इंद्रिय है भगवान श्री कृष्ण, उनको सारे इंद्रिय पूर्ण है, षोडश पूर्ण है। तो उनसे जो ज्ञान आते हैं, चाहे परंपरा माध्यम से हो, गुरु के माध्यम से, वैष्णव के माध्यम से हो, अवतार से माध्यम से हो, उससे जो ज्ञान आते हैं उसके सटीक ज्ञान माना जाता है। और जब हम उस ज्ञान की शिकायत करते तो हमारा श्रद्धा प्रपार बन जाता है, और तब हम जो श्रद्धा लगाते हैं वो हमारा शुद्ध शक्ति बनते हैं, और हम बंधन से मुक्त होते हैं, और हमारा गति परम लक्ष्य में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा श्रद्धा यदि हम शास्त्र विधान के अनुसार नियोग किया जाए, तो हमारा श्रद्धा इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त होगा। और नहीं तो हमारा श्रद्धा तो है, सभी की श्रद्धा है, उस श्रद्धा के हम अपना मन से नियोग करें तो उसमें
छोड़ के दूसरा आश्रम बन जाएगा। तो इसलिए इस श्रद्धा के अनुसार से चैतन्य चैतन्य एक ही व्यक्ति को 3 भाग भाग दिया। तो पहले कहे शास्त्र युक्ति सुनी पर दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारो ये संसार। शास्त्र युक्ति के सुनी पर दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारो ये संसार। अभी शास्त्र बात यहाँ पर है, अर्थात जिसको जो व्यक्ति में शास्त्र युक्ति में पटु है, निपुण है और भगवान के श्रद्धा को दृढ़ है, वो खुद संसार से उद्धार प्राप्त हो जाते और अपर का भी उद्धार करते। तारो ये संसार, तारे में तो उद्धार करते। उत्तम अधिकारी, इसको जो उत्तम अधिकारी श्रद्धा, शुद्ध सत्य श्रद्धा, ये संसार से बंधन नहीं होते। इसलिए शास्त्र युक्ति में सुनिपुण, अर्थात उसको शास्त्र मालूम है पूरा, और जिसको शास्त्र मालूम है उसको भ्रम तो होगा ही नहीं, वो सঠিক रास्ता में। तो शास्त्र युक्ति स्वरूपण दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से तारो ये संसार, वो खुद उद्धार प्राप्त होते और संसार जीव के भी उद्धार प्राप्त होते। जिसे प्रभुपाद आचार्यगण शुद्ध भक्तगण वो लोग संसार में आके उद्धार शिक्षा देकर उद्धार करते। वो लोग शास्त्र में सुनिश्चित। मध्यम अधिकारी श्रद्धा किससे कहा जाता है? न शास्त्र युक्ति नहीं जा दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से महाभाग्यवान। मध्यम अधिकारी वो है जो शास्त्र विज्ञान है नहीं लेकिन श्रद्धा पक्का है। आप बता दे भगवान है तो उसको मान लिया, उससे हिलता नहीं, दृढ़ श्रद्धा है। बस भगवान बोल दिया उसको सिखाएगा, विश्वास है तो छोड़ेगा भाई, शास्त्र उसको नहीं मान लिया, वो भी महाभाग्यवान है। वो किसी को उद्धार नहीं कर पाएगा लेकिन खुद उद्धार हो जाएगा। ये मध्यम अधिकारी का श्रद्धा है। और कनिष्ठ अधिकारी का श्रद्धा करते हैं जहां कमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, जिसको श्रद्धा भी कमल है और शास्त्र भी नहीं मालूम है, जहां कमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्म क्रम से और हईवे उत्तम, लेकिन जो श्रद्धा है वो कम है। शास्त्र ज्ञान तो है ही नहीं बिल्कुल, लेकिन श्रद्धा कम है। कभी शिव मंदिर जाते, कभी कृष्ण मंदिर जाते, कभी नारायण मंदिर जाते, भाई ये भी भगवान हो सकता, भाई ये भी भगवान हो सकता, भाई ये भी भगवान हो सकता। फिर श्रद्धा है उनको, लेकिन कमल में तो पूरा फिक्स नहीं, दृढ़ नहीं है, लेकिन वहां भी जाते, यहाँ भी जाते, यहाँ भी जाते। लेकिन सुनते 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 जब उसको थोड़ा परफेक्ट बन जाता, भाई ना ये ठीक है, ये ठीक है, वो गीता सुनते, भागवत सुनते, देवी पुराण सुनते सुनते जो पाका उसको पता चल जाता तो बोलते भाई नहीं ये ठीक है, गीता ठीक है, भागवत ठीक है, और ये बोलते कृष्ण भगवान भाई एक भगवान है, वो नहीं। और क्रमे क्रमे से ओ हईवे उत्तम। तो इस कमल श्रद्धा सुनते सुनते जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है और पाका हो जाता है सुनते सुनते, तो अब उसको पता चलता है भाई भगवान यही है और कोई नहीं है। तो धीरे धीरे से वो इसके पग पर आते और अभी उत्तम बन जाते हैं। जैसे एक कथा में सुने, जब कोई विदेशी आए थे इंडिया में, भाई इंडिया तो भगवान का खजाना है, यहाँ भगवान बहुत है, तो चलो विदेश से इंडिया आया भगवान के देखने के लिए। कलकत्ता में अगर पहुंचा, बहुत मंदिर है, तो यहाँ जाकर देखा काली मंदिर पहले चल गया। वो काली मंदिर जो देखा काली माता जी के इतना निकल के बैठा है, हाथ ऐसा अस्त्र एक माथा मुंडी गला में, भाई ये कैसे भगवान मर गया, तो खाने वाला है, ये तो बहुत आदमी खा चुका है, मारा कर चुका है। तो भगवान तो बोला प्रेम का है, माधुर्य का है,
सभी पे कृपा करने वाला है। ये तो इतना मुंड वाला झूठा कर, इतना आदमी खा चुका है, मार चुका है, और जीव अभी तो बाहर से निकलता है, ये कैसे भगवान होगा? वर्णन ये भगवान है। फिर दूसरा कोई जगह में गया, वहां भी कोई मंदिर दुर्गा में देखा जाएगा, इसके बाद इतना हाथ है, सारे अस्त्र है, तो मारने काटने वाले हैं, ये भी तो भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो प्रेम का है, तो सभी कृपा करने वाला है। तो दुर्गा माता में हाथ में 8 दशभुजा है, 8 हाथ में 8 अस्त्र है, किसी को तोरल है, किसी को बलम है, और एक हाथ में मुंडी है, तो ये भी तो मारने वाला है, तो ये भी भगवान नहीं हो सकता। फिर लास्ट में जब कृष्ण का मंदिर में आया, ये भगवान है, सब प्रेम से बोलते हैं, पूरा बांसुरी बजा, सब आनंद में है, यही भगवान। किसी को मारने वाला है नहीं, सभी का आनंद में रिझाने वाला है, तो यही भगवान है। तो उसको जो दृढ़ता था, श्रद्धा था, वो पक्का हो गया, वो भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, ये भगवान। जैसे वे कोमल श्रद्धा जार दृढ़ कोमल श्रद्धा जार कनिष्ठ से, जिसको श्रद्धा कोमल है वो कनिष्ठ है, लेकिन क्रमे क्रमे से उत्तम, सुनते सुनते धीरे धीरे उनको भी भक्ति व श्रद्धा धीरे धीरे उत्तम स्तर में आ जाएगा। तो जब उसके इसी प्रकार से श्रद्धा वृद्धि पा जाएगा, तो वो अपने भी उतर पाएगा, मतलब बंधन से मुक्त होकर भगवत प्राप्त होने के केंद्र मिलेगा। तो इसी प्रकार से इस चैप्टर में 3 प्रकार श्रद्धा का बात किया है, उत्तम, मध्यम, सत्तम, रजोत्तम, और 3 प्रकार की श्रद्धा अनुसार से समस्त कर्म भी इसके लास्ट में आगे आगे हम सुनते जाएगा, तो उसी अनुसार से हमारा जीवन भी सुधर जाएगा। हरे कृष्ण। जय श्रीमद् भगवद गीता के, स्वामी भक्तवृंद के, जय निताय गौर।